Good morning, children. How are you all? I hope you are fine at your places. I'm your English teacher, Divya Verma, and once again, we are together here for one new session. Okay, for today's lesson, I will tell you a story. मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी. Are you ready for the story? So let's begin. Once upon a time, there was a caterpillar. Caterpillar was very friendly and helpful. एक कैटरपिलर था, वो बहुत ही अच्छा और सबकी मदद करने वाला था. But no one was his friend. Why? कोई भी उसका दोस्त नहीं बनता था. Why? Because he was not beautiful. He went to a flower. He said, "Flower, flower, will you become my friend?" Flower said, "No, no, 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 no. I will not become your friend. I am very beautiful. You are not at all beautiful." Caterpillar became very sad. Now, next, he went to the dog. Dog said, "No, no, no, no. I don't want to be your friend. You're not at all beautiful. See, everybody loves me, but nobody loves you." डॉग ने कहा, देखो सब मुझसे दोस्ती करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, पर तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता. कैटरपिलर वर वेरी सैड. वो बहुत दुखी हो गया. एंड ही कर्ल्ड अप. और वो उसने अपने आप को ऐसे बिल्कुल बंद कर लिया. अपने आप को लपेट के उसने बंद कर लिया. वो बहुत दुखी था. 21 डेज तक वो ऐसे ही रहा. कितने दिन तक? 21 डेज तक वो ऐसे ही रहा. और बहुत मन में बहुत दुखी था, बहुत दुखी था. फिर 21 डेज के बाद क्या हुआ? यू नो दैट कैटरपिलर व्हेन कर्ल्ड अप अगेन, उसने फिर से अपने आप को खोला तो देखा कि अब वो कैटरपिलर एक क्या बन चुका है? ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन चुका है. वाओ, he was a beautiful butterfly now and he was fluttering his wings here and there. अब उसके पास विंग्स थे और वो यहाँ वहां खुशी से उड़ रहा था. अब फ्लावर भी उसका फ्रेंड बन गया, डॉग भी उसका फ्रेंड बन गया. यू लाइक द स्टोरी? सो कैटरपिलर चेंज्ड इनटू अ बटरफ्लाई. एक कैटरपिलर 21 डेज के बाद एक बटरफ्लाई बन गया. गॉट दैट? तो आज के हमारा जो लेसन है वो एक कैटरपिलर पे ही बेस्ड है. ओके, लेट्स start with the poem now. So this poem is in your English book. So today we are reading this. Let's start and read it. आप भी मेरे साथ साथ इसको गाएंगे. Where is the caterpillar? What is the name of the poem? Where is the caterpillar? Where is the caterpillar? कहाँ है caterpillar? Okay. So let's start. Where is the caterpillar hiding today? Where is the caterpillar hiding today? आज caterpillar कहाँ छुपा है? I looked under the table. I looked on the chair. I looked out the window, but he was not there. Where is the caterpillar hiding today? I looked in the fish bowl. I looked in the sink. I looked on the tree. I looked around the flowers. What did I see? What did I see? A beautiful butterfly looking at me. A beautiful butterfly looking at me. Okay. So you will sing this poem and you enjoy the poem. Okay. So let's read it once again and I'll explain you what is there in the poem. Where is the caterpillar hiding today? आज ये कैटरपिलर कहाँ छुपा है? हाइडिंग मतलब छुपना. ओके, और टुडे मतलब आज. I looked under the table. मैंने टेबल के नीचे देखा. I looked on the chair. मैंने चेयर के ऊपर देखा. I looked out the window. मैंने खिड़की से बाहर देखा. But he was not there. पर वो कहीं भी नहीं था. Where is the caterpillar hiding today? Again, कहाँ छुप गया कैटरपिलर? I looked in the fish bowl. मैंने फिश बॉल में देखा. फिश बॉल होता है जहाँ पे वाटर में फिश को रखा जाता है. जिंदा फिश रहती है ना बॉल में. I looked in the sink. वॉश बेसिन, सिंक जहाँ पे हम हाथ धोते हैं या बर्तन धोते हैं, that is the sink. I looked on the tree. मैंने पेड़ के ऊपर भी देखा उसको.
आई लुक अराउंड द फ्लावर्स, मैंने फूलों के आसपास भी देखा, पर कैटरपिलर कहीं भी नहीं मिला. What did I see? मैंने क्या देखा? A beautiful butterfly looking at me. एक सुंदर सी बटरफ्लाई मेरी तरफ देख रही है. तो the child, वो बच्चा हर जगह कैटरपिलर को ढूंढ रहा है. Is looking at the table, चेयर के ऊपर, विंडो से बाहर, फिश बॉल में ढूंढ रहा है, सिंक में ढूंढ रहा है, ट्री में ढूंढ रहा है, सॉरी ट्री पे ढूंढ रहा है, फ्लावर्स में ढूंढ रहा है, पर उसे कहीं भी कैटरपिलर नहीं मिल रहा है. और जब उसने देखा फ्लावर्स के पास, तो एक सुंदर सी बटरफ्लाई उसकी तरफ देख रही है. तो आप बता सकते हैं ये बटरफ्लाई कौन सी बटरफ्लाई है? यस, अभी आपने स्टोरी पढ़ी ना, दैट द कैटरपिलर चेंजेस इनटू अ बटरफ्लाई. तो वो जो कैटरपिलर पहले जिसको बच्चा ढूंढ रहा था, अब वो कैटरपिलर नहीं रह गया है, अब वो चेंज हो गया है. अब उसकी बॉडी में विंग्स आ गए हैं और वो एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन गया है. यू गॉट दिस? वेरी गुड. सो you will read this poem and you will recite this poem and enjoy reading it. Okay, so after reading the poem, let's solve its comprehension. So this is on page 65. The comprehension part is on page 65. Okay, so the answers are yes or no. A part, you have to tell the answers in yes or no. आपको हाँ या ना में जवाब देना है. Was the caterpillar hiding under the table? क्या वो टेबल के नीचे था? No. आप बुक में ही इसे लिखेंगे. No need to do it on the notebook. Was the caterpillar hiding in the fish bowl? क्या वो फिश बॉल में था? No, not at all. बिल्कुल भी नहीं. Was the caterpillar hiding out the window? क्या वो खिड़की से बाहर था? No, बिल्कुल नहीं. Did the caterpillar change into a butterfly? क्या कैटरपिलर बटरफ्लाई में चेंज हो चुका था? So the answer is yes. हमारा जो कैटरपिलर था अब वो बटरफ्लाई बन गया था. Okay? So the next part, B part, you have to complete the sentences. The child looked for the caterpillar. Child ने हर जगह कैटरपिलर को देखा. सबसे पहले उसने देखा अंडर द टेबल, टेबल के नीचे. उसके बाद डैश द चेयर, चेयर के कहा देखा? ऑन द चेयर, चेयर के ऊपर. ऑन, अंडर मतलब नीचे. डैश द विंडो, आउट द विंडो, विंडो से बाहर देखा. डैश द सिंक एंड फिश बॉल, सिंक के अंदर, इन द सिंक. ओके. एंड डैश द फ्लावर्स, अराउंड द फ्लावर्स, फूलों के आसपास. ओके, सो दिस इज योर आंसर, अराउंड द फ्लावर्स, फूलों के आसपास. ठीक है, पर फिर भी उसे कहीं भी नहीं दिखा. Now let's do the third exercise. It's very easy. You have to unscramble. Unscramble क्या होता है? I will first explain you. Let me clean it. चलिए, third exercise, unscramble. Unscramble the letters and make the words. Unscramble होता है. स्क्रैम्बल क्या होता है? स्क्रैम्बल होता है जब मिक्सअप हो जाता है. तो यहाँ पे अल्फाबेट्स को, वर्ड, एक कोई पर्टिकुलर वर्ड है उसके अल्फाबेट्स को मिक्स कर दिया गया है, स्क्रैम्बल कर दिया गया है, और आपको क्या करना है? उसे अनस्क्रैम्बल करना है, उसको सही करके लिखना है. सो व्हाट डू यू थिंक द फर्स्ट वर्ड वुड बी? आपको क्या लगता है ये फर्स्ट वर्ड किसका स्पेलिंग है? कैन यू गेस? यस, इट इज अ स्पेलिंग ऑफ अ विंडो. सभी स्पेलिंग्स पोएम में से ही हैं. ओके. सेकेंड, किसका स्पेलिंग है ये? यस, इट इज अ चेयर.
Third, flowers or flowers. And the fourth is butterfly. Yes, butterfly. Okay, children, I hope you enjoyed the poem. It was really enjoyable poem. And after this, on page 66, this is a talk time. And every time, you know what you have to do with the talk time. You have to practice it with your brother, sister or your parent or anyone you could take help. आप किसी भी हेल्प से ये टॉक टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं. एज टॉक टाइम का मतलब बोलना है, बोलकर चीजों को सीखना है. ओके, नाउ व्हाट इज अ होमवर्क फॉर यू इज, आज का आपका होमवर्क क्या है, आपको राइट फर्स्ट पैराग्राफ of poem in notebook and draw a related picture. आपको नोटबुक पर पोएम लिखनी है. फर्स्ट पैराग्राफ बहुत है, पूरी लिखने की जरूरत नहीं है. और उसके साथ एक पिक्चर बनानी है. उसमें आप कोई भी सीन दिखा सकते हैं कि बच्चा कहीं कहीं कैटरपिलर को ढूंढ रहा है, तो आप उसमें से कोई भी दिखा सकते हैं. जैसे टेबल के नीचे ढूंढ रहा है, या फ्लावर्स में ढूंढ रहा है, या पेड़ पे ढूंढ रहा है, एनीवेयर. और यू कैन मेक अ बटरफ्लाई एंड अ कैटरपिलर एंड अ बॉय, वट एवर यू वॉन्ट टू. आप पिक्चर अच्छी सी बनाएगा, नीट एंड क्लीन, अच्छे से लिखिएगा. ओके, ओके चिल्ड्रन, देन enjoy your day. Goodbye, take care.